हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो कि मैं इस समय इस बुक की कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि कुछ लाइफ लेसन है, कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाए और उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। कुछ हैबिचुअल चेंजेस वो लाए, कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो इस तरह की स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो ये बुक जो है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है कि आपकी जो चिंताएं हैं वो कैसे दूर हों, और लगभग हर परिस्थिति के लोगों की चिंताओं के लिए इसमें दिया गया है। और एग्जैक्टली वही स्टोरी है, उसी तरह की चीजें हैं जैसे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हमारी जब हम किसी को समझाते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, तो होता क्या है कि वो कहता है कि अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी जो चीजें हैं वो अलग हैं, मेरी परिस्थितियां दूसरी हैं। तो यहाँ पे कुछ कोशिश की गई है, ऑथर ने कोशिश की है कि लगभग उसी तरह के जो प्रॉब्लम के लोग हैं उनसे आपको मिलवाया जाए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, यही प्रॉब्लम तो हमारी भी है। और ये जब उसको सॉर्ट आउट कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये इसका मेन इंट्रोडक्शन है। तो और मैं इससे पहले 3 स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ इस बुक से, और आज फिर एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ मार्क करके रखा हुआ है स्टोरीज को, तो ये वाली स्टोरी का आज है, और ये स्टोरी है एडिथ ऑलरेड की, मिस्टर एडिथ ऑलरेड की स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। और यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसको पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ कि क्या ये स्टोरी है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। आई हैव अ लेटर फ्रॉम मिस्टर एडिथ ऑलरेड। तो आई हैव अ लेटर मीन्स ऑथर के पास एक लेटर है, आया है, जो कि मिसेस एडिथ ऑलरेड ने लिखा है। I have a letter from Mrs. Edith Allred of Mount Airy, North Carolina. As a child, I was extremely sensitive and shy. She says in her letter, I was always overweight and my cheeks made me look even fatter than I was. I had an old-fashioned mother who thought it was foolish to make clothes look pretty. She always said wide will wear while narrow will tear. And she dressed me accordingly. I never went to parties, never had any fun, and when I went to school, I never joined the other children in outside activities, not even athletics. I was morbidly shy. I felt I was different from everybody else and entirely undesirable. When I grew up, I married a man who was several years my senior, but I did not change. My in-laws were a pious and self-confident family. They were everything I should have been, but simply was not. I tried my best to be like them, but I could not. Every attempt they made to draw me out of myself only drove me further into my shell. I became nervous and irritable. I avoided all friends. I got so bad I even dreaded the sound of the doorbell ringing. I was a failure. I knew it, and I was afraid my husband would find it out. Whenever we were in public, I tried to be gay and overacted my part. I knew I overacted, and I would be miserable for days afterward. At last, I became so unhappy that I could see no point in prolonging my existence. I began to think of suicide. What happened to change this unhappy woman's life? Just a chance remark. A chance remark, Mrs. Allred continued, transformed my whole life. My mother-in-law was taking one day of how she brought her children up, and she said no matter what happened, I always insisted on their being themselves, on being themselves. That is what did
it. In a flash, I realized I had brought all this misery on myself by trying to fit myself into a pattern to which I did not conform. I changed overnight. I started being myself. I tried to make a study of my own personality, tried to find out what I was. I studied my strong points. I learned all I could about colors and styles and dressed in a way that I felt was becoming to me. I reached out to make friends. I joined an organization, a small one at first, and was petrified with fright when they put me on a program. But each time I spoke, I gained a little courage. It took a long while, but today I have more happiness than I ever dreamed possible. In rearing my own children, I have always taught them the lesson I had to learn from such bitter experience. No matter what happens, always be yourself. तो ये कहानी है, एडिथ ऑलरेड एक महिला है, उनकी कहानी है, और वो अपने बचपन की चीजें बता रही थी कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत मोटी थी और मेरे गाल इतने ज्यादा चबी थे कि मैं उससे और ज्यादा मोटी लगती थी, और इसकी वजह से मैं जो हूँ लोगों से कुछ अपने को डिफरेंट महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, या जो भी इस तरह की उनके अंदर भावना थी। और उनकी जो मम्मी थी वो भी जो है उनको जिस तरह कपड़े पहनना पसंद थे वो नहीं पहनाती थी। वो जो है कहती थी कि अगर तुम फिट वाले कपड़े पहनोगे तो वो फट जाएंगे, और जो अगर थोड़े ढीले रहेंगे तो वो कुछ दिन चलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उनको ड्रेस अप करती थी, और इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल जैसे वो चाहती थी उस तरह से उनको बना दिया था। इस वजह से वो इतनी ज्यादा अंदर एक शेल में हो गई, एक अपने ऊपर कवरिंग उन्होंने कर ली अपने बिहेवियर के ऊपर, कि वो आर्टिफिशियल बिहेव करने लगी एकदम। मतलब जिस तरह की थी वो उस तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। वो लोगों से कटी कटी रहती थी, बहुत ज्यादा शर्माती थी, और किसी बच्चों की कोई भी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, और वो कोई एथलेटिक्स, कोई गेम्स या इस तरह की कुछ भी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। फिर जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी हो गई, और उनकी शादी एक ऐसे घर में हुई, पहले तो उनका हस्बैंड उनसे काफी साल बड़ा था, और तब भी वो जैसी थी उन्होंने वहां, मतलब शादी के बाद भी अपने में बिल्कुल चेंज नहीं लाया। जबकि उनका जो इन लॉज की जो फैमिली थी, यानी उनका जो ससुराल था, वो लोग जो है काफी ओपन माइंडेड थे, खुले विचारों के थे, काफी ज्यादा अपडेटेड फैमिली थी वो। और ये गई तो ये थोड़ा सा बहुत शर्मीले स्वभाव की थी, तो ये वहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, और वो इतनी ज्यादा वहां पे उन लोगों से कटने लगी अपने नेचर की वजह से कि इनको भी बहुत दिक्कत होने लगी वहां रहने से। और अपने हस्बैंड से भी वो कटी कटी रहती थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको जो वो अंदर से है कहीं वो जान ना जाए, कहीं वो ऐसा ना हो कि कुछ उनको ऐसा लगे। उनको हर चीज में संकोच हो जाता कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लगूंगी, इस तरीके की भावना उनके अंदर हमेशा रहती थी। और वो इसलिए कहीं भी कोई आए तो वो एकदम अलग हो जाती थी, किसी से बात नहीं करना। इवन उनकी ये स्थिति हो गई थी कि अगर दरवाजे पे बेल बजे, यानी कि डोरबेल बजती थी, तो भी उनको डर लगता था कि पता नहीं कौन है, और बहुत दुखी रहने लगी इन सब चीजों की वजह से। और इतना करते करते उनकी एक दिन ये स्थिति हो गई कि उन्हें लगा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन जब उनकी ये स्थिति आ गई कि अब उन्हें लगा कि उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, तभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। वो हुआ यूं कि उनकी जो मदर इन लॉ थी, यानी उनकी जो सास थी, वो ऐसे ही बातों बातों में बताने लगी कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला है। और उस पालन पोषण की कहानी जब वो बताने लगी तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे जैसे थे, मैं उनके हिसाब से ही उनको ड्रेसअप करती थी, या उनके हिसाब से ही उनको चाहती थी कि वो जैसे हैं उसी हिसाब से रहें। और मैं अपने जो मेरा जो पैटर्न है, यानी मैं जिस एज की हूँ या मैं जो चीजें पसंद करती हूँ, मैं उनके ऊपर वो चीज ना अप्लाई करूं, या वो चीज उनके ऊपर जबरदस्ती ना करूं। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को पाला। और तब उन्होंने सोचा कि मुझे जो मेरा जो इस तरह का नेचर है, वो ये सब जानती थी कि मेरा नेचर गलत है, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने फिर जो है वो जो नेचर चेंज किया, यही सोचा कि मुझे
जब पाला गया तो मुझे ही वहां पे ऐसी चीजें कर दी गई कि मैं मेरा नेचर इस तरीके का हो गया। और उसी समय से उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। और उनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बताया कि जैसे आप हो आप वैसे ही रहो, बिल्कुल आपको अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो इंटरनल अंदर से हो, जिस तरह का आपका नेचर है वही रहो, तो ही आप अच्छे लगोगे। अगर कहीं भी आप आर्टिफिशियल या कहीं भी आप दिखावा करने लगोगे या छुपाने लगोगे कुछ, तो चीजें वर्स होती जाएंगी। तो इस तरीके से उनको जब ये चीजें पता चली कि हाँ मुझे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना चाहिए, तब उन्होंने अपने ऊपर स्टडी करना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया कि कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इस तरीके से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। शुरू में उनको दिक्कत होती थी, बाद में उनका धीरे धीरे जो हिम्मत है वो बढ़ती गई और वो काफी अच्छी बोलने में निपुण हो गई, बात करने में निपुण हो गई। तो इस तरीके से उनका जो नेचर है वो एकदम चेंज हो गया, वो काफी खुश रहने लगी अब। और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी ढंग से पाला जैसे कि वो चाहती थी कि उन्हें पाला। जब अपने बच्चों को उन्होंने वही रहने दिया जैसे बच्चे चाहते थे, जैसे बच्चों को पसंद था वो चीजें बच्चों में कंटिन्यू की थी। तो ये थी, तो जो लास्ट उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि जो मेन लेसन था वो नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑलवेज बी योरसेल्फ। चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप हो वही आप रहो। कहीं भी परिस्थितियों में आप अपने इतना मत बदल। आप जो अंदर से हो वो चीज जब खत्म हो जाएगी तो आप, स्वाभाविक है कि आप दुखी रहोगे। और एक चीज, तो ये जो स्टोरी थी, इसके बाद चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं कि हम जो है लोगों की नकल करने लगते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है आप ही करो। अगर कोई व्यक्ति, आप जो कर रहे हो, जो आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, सामने वाला आपको देख के वही चीज कॉपी करेगा तो वो उतने अच्छे से वो चीज नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ ये भी है कि वो जो चीजें अच्छे से कर सकता है वो चीजें आप भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अपने को ओरिजिनल रखो। और एक मिनट में दरवाजा खोल दूं, मेरी बिल्ली अंदर बंद हो गई है, वो परेशान कर रही है। तो खोल दिया, वो चली गई है, बच्चा है छोटा सा उसका, पली हुई है घर में, तो कंटिन्यूटी थोड़ी खत्म हो गई। हाँ, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अपने अंदर हमेशा अपने जो ओरिजिनल नेचर है वो बना के रखना चाहिए। और उसमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी से देख के कुछ सीखें, या किसी से देख के सीखें नहीं बल्कि कॉपी करें। सीखना तो अच्छी बात है लेकिन कॉपी किसी को नहीं करना चाहिए। और आपको इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, तो आप जो चम्मच से काम ले सकते हो वो आप गिलास से नहीं ले सकते। जो आप गिलास से काम करते हो वो आप कटोरी नहीं कर सकते। जो कटोरी से काम होता है वो ग्लास से नहीं हो सकता। मीन्स हर एक बर्तन का एक स्पेसिफिक वर्क है, स्पेसिफिक क्वालिटी है जो वो अपने अंदर रखता है। उसी तरह अगर मान लीजिए पेड़ों को लेते हैं, अगर कोई सोचे कि आम तो बहुत अच्छा पेड़ है, आम में तो मीठे में फल लगते हैं जिसे हम खाते हैं, नीम में क्या है, कड़वा है। तो ऐसा नहीं है, अगर नीम सोचे कि मैं तो कड़वा हूं, मैं तो बेकार हूं, आम को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे तो नहीं पसंद करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नीम की अपनी विशेषता है, उसकी कड़वाहट के साथ उसमें जो औषधीय गुण है, जो उसके अंदर इतनी अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीजें नीम को आम की तुलना में कई गुना बेहतर बनाती हैं। तो इन चीजों का कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं कि वो कैसा है और आप कैसे हो। आम और नीम दो अलग चीजें हैं, दोनों की अलग क्वालिटी है। आप उसको देखेंगे, अगर आप नीम पसंद करते हैं तो आप आम को देखेंगे और आम को कहेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, 2 महीने तुम्हारे फल खा लो, काम खत्म, बाकी तुम बेकार हो, हैं। और नीम तो बताइए हमेशा बहुत अच्छा हरा भरा रहता है, और कितनी उसकी दवाइयां बनती हैं, किस चीजों में काम करता है, कितने बड़े बड़े रोग ठीक कर देता है। तो इस तरीके से हर चीजों की अलग क्वालिटी होती है। तो हमेशा अपनी जो यूनिकनेस है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसे बना के रखना चाहिए। कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं उसकी तरह हो जाऊं या मैं
वो लोग मुझे उसकी तरह प्यार करें, क्योंकि जो आपको प्यार करते हैं शायद वो उसको नहीं करते हैं। उनके जो लविंग ग्रुप है वो अलग है, जो उनको प्यार करते हैं वो उनके उन उस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, और जो आपको प्यार करते हैं वो उन लोगों को नहीं प्यार करेंगे, क्योंकि वो उन लोग को पसंद नहीं, जो टेस्ट है वो दूसरा है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये इस स्टोरी के हिसाब से जो मैं और इजी वे में और इजी एग्जाम्पल्स के साथ तो मैंने कोशिश की, और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज 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 शेयर करिए, क्योंकि मेरी स्टोरी नहीं, मिस्टर की लिखी हुई ये कलेक्शन की स्टोरी किसी न किसी की लाइफ चेंज कर सकती है, और आप वो काम कर सकते हैं कि किसी की लाइफ चेंज हो जाए। तो प्लीज जहां भी अच्छा काम हो सकता हो जरूर करिएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।